like proteins, lipids, and then atoms, which is of the order of 0.1 nanometers. That's the spectrum of objects that we are talking about, that we need to deal with when we are talking about micro robots. There are various technologies that are used for manipulating these objects, and I will show you how. So these technologies include optical tweezers, microfluidics, magnetic actuation, atomic force microscopes, micropipette aspiration, biohybrid actuation. I'll talk about each of these briefly in the next slides. And after that, I will present to you some of the research that is being done in our lab. So let's look at optical tweezers. All of you must be familiar with tweezers, right? चिमटा, जैसे रोटी जो पकाते हैं तो चिमटे से पकाते हैं, तो उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कि रोटी पतली होती है और जो तवा होता है वो बहुत गर्म होता है, तो उससे आप अपनी उंगलियों से नहीं छू सकते क्योंकि बहुत गर्म होता है, आप तवा को नहीं छूना चाहते। तो जो चिमटा होता है वो रोटी को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसको पकड़ के उसको उल्टा पुल्टा करने के लिए। तो उस चीज को ट्वीजर्स कहा जाता है या चिमटा कहा जाता है। तो ये ऑप्टिकल ट्वीजर्स क्या है? ऑप्टिकल ट्वीजर्स भी एक तरह का चिमटा है, लेकिन यह लाइट से बना होता है। अब लाइट से कैसे ट्वीजिंग इफेक्ट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो this was invented by Ashkin, Arthur Ashkin, back in 1986, for which he actually got Nobel Prize in 2019. If you know, he is the oldest Nobel Prize recipient, and he shared it with 2 more people actually. So the basic idea is that you have this laser beam which is modulated, which is focused at a point by making it pass through an optical arrangement comprising of lenses and mirrors, and eventually at a very high magnification objective lens. So basically what happens is that if you think of light or laser as a jet of photons, laser is basically collimated and coherent beam of light, right? So if you think of laser as jet of photons, right? So these photons, when pass through any material which is dielectric, then what happens to the light when it passes through glass? It bends, right? It refracts. So if you think of photon, then photon, when it enters into a cell which is, you can say, transparent, which has a different refractive index, what will happen to the photon? The photon will change the direction. Okay, so now you can think of this focused light, which is jet of photons, and when that passes through any dielectric material and it changes the direction, it imparts a momentum on the object. For example, even when light is falling on my body, there is some momentum transfer that is happening, but that momentum transfer is so small that I hardly perceive it. But when we are talking about very small, very tiny objects of micro scale or nano scale, then that force is quite appreciable. वो जो force पड़ता है मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से लाइट के साथ, वह एप्रिशिएबल होता है। तो यहाँ इसमें आप देखेंगे इस एनिमेशन के अंदर कि ये देखिए, ये लाइट फोकस्ड बीम है और कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से एक ट्रैपिंग इफेक्ट होता है उसके ऊपर, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर ट्रैप हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। हेलो, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें कृपया। अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। तो खुद ही है स्पीकर। माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ इसमें आपने देखा कि जो सेल है या ग्लास के बीड्स होते हैं उनके ऊपर एक ट्रैपिंग इफेक्ट काम करता है,
ठीक है, और मैंने ट्रैपिंग इफेक्ट कैसे काम करता है वो आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो इससे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो उसका ऑर्डर लगभग पिको न्यूटन के ऑर्डर में होता है। पिको न्यूटन बहुत ही छोटा फोर्स है, लेकिन उतना छोटा फोर्स सेल को मैनिपुलेट करने के लिए काफी होता है। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके काफी सारा बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया गया। आप इसको समझ सकते हैं कि एक तरह से जैसे चिमटे से आप रोटी को उठाते हैं, वैसे ही एक ऐसा चिमटे की तरह काम करता है जो सेल को मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्टिकल ट्वीजर्स का इस्तेमाल करके कैसे एक सेल को खींचा जा रहा है, how a cell is being pulled. So you can see these two glass beads, जो साइड में दो ग्लास बीड्स हैं, उनको लेजर से ट्रैप किया जाता है, और वो ट्रैप करने के बाद उनको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाया जाता है। और ये जो बीड्स है ये सेल के साथ चिपके हुए होते हैं। तो जब इसको खींचते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट पर जाकर सेल कोलैप्स कर जाता है। तो इससे हम सेल की यंग्स मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, सेल की बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, और सेल की बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी से हम सेल के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे अगर कैंसर सेल्स की बात करें तो कैंसर सेल्स जो है उनकी स्टिफनेस जो हेल्दी सेल्स है उससे कम होती है, और इसी कारण से अगर आप बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं किसी सेल की, तो आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस सेल में कैंसर है या नहीं है। इसी तरीके से डीएनए स्ट्रैंड को भी स्ट्रेच किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बीच में एक पतली सी चीज है वो डीएनए की स्ट्रैंड है, और उसको खींचकर उसकी बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी पता की जा सकती है। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन जो है बहुत ही छोटे स्केल पर, of the scale of nanometer and micrometer, that can be done using optical tweezers. Now let's look at another technique, that is microfluidics. In microfluidics, people use fluid flow to manipulate cells and biological objects. So here in this animation, you will see how a cell flows into this narrow channel and it gets cut into two parts. Okay, so in this narrow channel is of very small size. It's of the order of few micrometers, and the fluid is injected into it. So and that fluid flow carries the cell along with it, and that's how the cell manipulation takes place. Now this kind of operation is used in cell sorting, cytometry, that is measuring the cell properties and so on and so forth. So these kind of channels, you see this channel is fabricated using MEMS technology, micro electromechanical systems technology, MEMS technology. So in this technology, what is done is that you have this silicon wafer on which this photoresist is deposited, and then on that photoresist PDMS is put. Now this is inserted into nitric acid, so the silicon wafer is dissolved, and then after that when light is exposed to it, then finally only PDMS is left. So it's like molding, और इस मोल्डिंग से ये चैनल्स बच जाते हैं, और यही वो चैनल है जिसके थ्रू फ्लूइड जो है वो पास किया जाता है। और इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जब ये चैनल बन जाते हैं तो इसमें हमें फ्लो डालना है, तो ये फ्लो बहुत ही स्मॉल फ्लो रेट के साथ जाना चाहिए। इसमें हम बड़े पंप नहीं लगा सकते, इसमें ऐसे पंप लगाने होंगे जो माइक्रो लीटर्स पर सेकेंड की फ्लो रेट प्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए बहुत तरह के पंप्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सीरिंज पंप एक टेक्नोलॉजी है। तो सीरिंज पंप जो है उसे आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो एक सिरिंज पंप ही है ना। वो फ्लो, उसमें जब आप मेडिसिन को बॉडी में इंसर्ट कराना है तो आप एक फ्लो जनरेट करते हैं उसके पिस्टन को मूव करके। तो वही सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, जिसमें इसका जो पिस्टन है उसको मोटर के थ्रू मूव किया जाता है।
मोटराइज तरीके से। और जब वो मूव करता है तो इसका जो आउटलेट है वहां से जो फ्लूइड है उसको उसकी बहुत छोटी डिस्चार्ज क्वांटिटी को इन चैनल्स के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। इस तरह के सिरिंज पंप के कुछ मतलब फायदे ये हैं कि बहुत ही सिंपल होता है इसका डिजाइन, लेकिन इसका रिस्पांस टाइम ज्यादा होता है। मतलब जब इसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं तो जो फ्लो निकलने में वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है। हिस्टेरेसिस होती है इसमें, लिमिटेड वॉल्यूम इसके अंदर होता है। मतलब जो जो इस ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूअसली फ्लो जनरेट कर सकता है। जब ये पिस्टन एंड पे पहुंच जाएगा तो फिर से इसको डिसएंगेज करके फिर से भरना पड़ेगा। तो इसके लिए इस तरह के पीजो पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, जिसमें आप जब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और उस स्ट्रेन के चलते आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये डायफ्राम मूव होता है और इससे ये फ्लो जो है ये कंटिन्यूअस फ्लो एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसमें एक तरह का पल्स डिस्चार्ज पॉसिबल है। आप जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज चेंज करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये फ्लो जो है वो मूव करेगा। ठीक है। इसके अलावा पेरिस्टाल्टिक पंप का इस्तेमाल होता है। तो पेरिस्टाल्टिक पंप में जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इस तीसरे फिगर में कि इस तरह का एक ज्योमेट्री बनाई जाती है जो जब रोटेट करती है तो आप देख सकते हैं कि इसका लोअर पार्ट में वॉल्यूम बढ़ता है जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है। आप देखेंगे कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, जिससे इनलेट में फ्लूइड को खींचा जाता है और वह आउटलेट में प्रेशर बढ़ता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज होता है। तो इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं। इनपुट इनलेट और आउटलेट सेग्रीगेटेड होते हैं। और इसमें सेमी सॉलिड मटेरियल भी आराम से यूज किया जा सकता है जो कि सिरिंज पंप में कठिन है। तो इस तरीके से कई सारे पंप्स, माइक्रो पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और भी सर कई सारी टेक्नोलॉजीज है, अभी टाइम नहीं है तो सारे नहीं डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। हाँ, कोई सवाल है? सर सॉरी सर फॉर डिसरप्टिंग हाँ जी बोलिए। now it's going to time out, so I would like to invite all the participants again with the same link. ओके After 2-3 minutes it will be ended. ओके All are requested to join this event with the same link. So